जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। મન એટલે જે સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયની વાત હતી ને એના ઉપર હતું. એટલે મનોયોગ અને વચન યોગ. આપણે જે મન દંડ વચન દંડ બોલીએ ને આખો એ જ ટોપિક હતો. હા હા, મન દંડ વચન દંડ કાય દંડ પરિહરવું. એટલે જે ખાસ મુદ્દો એ હતો કે ભાષા સચિત છે કે અચિત. એવી રીતે જ જેમ ભાષા અલગ છે ને એવી રીતે મન પણ અલગ છે. મનનું બંધારણ કેવી રીતે થાય છે. 5 ઇન્દ્રિય વગર મનનું બંધારણ નથી, પહેલી વાત આ. અને મન ઈ આત્મા નથી. ભાષા અનાત્મ રૂપ છે, મન પણ અનાત્મ રૂપ છે. જેમ ભાષા અચિત છે એમ મન પણ અચિત છે, પણ ભાષા રૂપી છે એમ મન પણ રૂપી ચોક્કસ. મનના પૂતગલો રૂપી છે. એટલે વિચારતા પહેલા આપણે એને ગ્રાસ્પ કરીએ છીએ. વિચારતા પહેલા હા, પછી તમે એને વિચાર કરી શકો છો. એટલે મન, હા, એટલે ખાસ મન એ આત્મા નથી, પણ મન એ આત્માથી ભિન્ન છે, અલગ છે, અલગ છે. અને એટલે જ મન મળે તો જ તમે મોક્ષ જઈ શકશો, બાકી નહીં. મનની સ્થિતિ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય નહીં બનો ત્યાં સુધી મોક્ષ જઈ શકવાના નથી. બરાબર. અને મન સમય વ્યતીત થઈ ગયા પછી મન નથી. માત્ર તમે જે સમય વિચાર કરો છો ત્યારે જ મન ઉદ્ભવેલું છે. એટલે જ ખાસ કહેવાય છે, તને ખ્યાલ હોય તો, કે થોડોક સમય જવા દો ને. માની લો કે જે વિચાર ખરાબ આવ્યા તો એને ભાવનાને તમારી સારી ભાવનાને તરત કરી વાપરી કાઢો. એને માટે રાહ નહીં જોવાની, નહીં જોવાની, કારણ કે એ નીકળી ગયું. હા, મન તરત બદલાઈ જાય. એટલે મન ખાલી સમય પૂરતું જ મન ઉદ્ભવેલું છે. પછી તમે એમ કહો કે હવે મારું મન નથી, કારણ કે એનો સમય નીકળી ગયો. એ સમય નીકળી ગયો ને પછી તમે એ વસ્તુ કરો ના કરો, કદાચ ન પણ કરો, એ પણ બની શકે એમ. એટલે આ વસ્તુ માટે ખાસ કીધું. અને જો એવા વિભાવ આવ્યા હોય ને તો પણ રોકાઈ જવાનું, થોડી વાર કામ નહીં કરવાનું. વિભાવ આવ્યા હોય એમ કે તમને મન વિભાવમાં જતું રહ્યું છે, સારા ભાવ નથી, તમને ખોટા વિચારો આવ્યા છે, ખોટું કામ કરવું છે, તો એના માટે તરત નહીં કરવા, રાહ જોવાની. રાહ જોવાની એટલે કે તમે એને જુઓ. એમ ખોટું કામ કરવાનું મન થાય ને તો તમે થર્ડ પર્સન તરીકે એને જુઓ, થર્ડ વ્યક્તિ તરીકે જુઓ કે ભાઈ આ વિચાર, આ બિંદુને આ વિચાર આવ્યો છે અને જો હવે આ કામ કરશે તો એનું શું પરિણામ આવશે. થર્ડ પર્સન તરીકે તમે એનો વિચાર કરો. એટલે એટલો સમય નીકળી ગયો ને. હા, અને મન પર્યાપ્તિ નામ કર્મના ઉદયથી જ પર્યાપ્તિ મળે. એટલે જો મન પર્યાપ્તિ નામ કર્મનો ઉદય હોય તો જ સંજ્ઞી મનુષ્ય બનાય છે. બરાબર. એટલે મન ભાષાની જેમ અનાત્મ રૂપી પણ છે. રૂપી છે, આપણે નથી જોઈ શકતા, પણ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય ને છદ્મસ્ત કેવડી ભગવાન છદ્મસ્ત જોઈ શકે. છદ્મસ્ત જરૂર જો ભગવાનને દરેકે દરેક ગણધરને મનના પ્રશ્નો જાણીને સીધો સામેથી જ બોલાવીને સવારી કર્યા ભગવાને બધા. એટલે એને ભગવાન એને જોઈ શક્યા છે, રૂપી છે, કે આના મગજમાં શું વિચાર આવે છે, વિચારને પણ એ જોઈ શક્યા છે. બરાબર. અને અચિત અને અજીવ રૂપ છે. મન અચિત છે, સચિત નથી, અચિત છે. કારણ કે એનું પોતાનું જીવન નથી. એ કઈ પોતે શ્વાસોચ્છ્વાસ નથી લઈ શકવાનું. મન મરી જાય છે એવું બનતું નથી કે જીવ્યું અને મરી ગયું. આત્માનું એવું બને છે, શરીરનું એવું બને છે. અને અજીવ રૂપ છે. એટલે મનન સમયે જ એ મન, એના મનનના પહેલા પણ એ મન નથી, મનનના પછી પણ એ મન નથી. એટલે જ સારા વિચાર હોય તો એ મન જયારે ચાલુ હોય તમારા મનનનો સમય ત્યારે જ એને કરી લેવાનું. અને ખરાબ વિચાર કે ખરાબ કાર્ય માટે વિચાર આવતો હોય તો સમય રાહ જુઓ, થોડોક સમય, બસ ત્યાં સુધીમાં તમારું મન ઉતરી જશે. બરાબર. અચ્છા, મન જીવોને જ હોય છે, અજીવોને હોતું નથી. હવે એના પછી કાયા વિશે પ્રશ્ન હતા, એ પણ થઈ ગયું. કાયાનું પણ મન અને ભાષા જેવું કાયાનું નથી. મન અને ભાષા કરતા કાયા અલગ છે. કાયા રૂપી પણ છે અને અરૂપી પણ છે, બંને છે. કાયા રૂપી પણ છે.
કાયા એ દ્રષ્ટિએ રૂપી છે. કાયા કે તમારી પૂતગલનું આ જે સંઘર્ષ આખું પૂતગલ અસ્થિકાય છે ને એ દેખાય છે, એ દ્રષ્ટિએ એ રૂપી છે. કાયા સચિત પણ છે ને અચિત પણ છે. સચિત એટલા માટે કે અત્યારના મારું હું જીવતી છું તો એ સચિત છે, પણ મારા મરી ગયા પછી મારી કાયા અચિત થઈ જવાની છે. બરાબર. અને રૂપી એ દ્રષ્ટિએ કે જયારે પૂતગલના અસ્થિકાય ભેગા થાય છે તો એ રૂપી બની ગયું, પણ જયારે એને એક એક કણિયા છૂટા છે ત્યારે એ રૂપી નથી. એક જ કણિયો છૂટો થઈ જશે તો પછી એ રૂપી રહેવાની નથી. કાયા જીવોને પણ છે અને અજીવોને પણ છે. એટલે જે હવે લાકડું સમજો વૃક્ષ છે, વૃક્ષમાંથી લાકડું ટેબલ બની ગયું તો એને કાયા તો છે ને, પૃથ્વી કાય તો છે જ એની પાસે, પણ અંદર જીવ નથી. બરાબર. એટલે એની અંદર જીવ નથી. એટલે કાયા કેવું છે, પહેલા હતું જયારે ઝાડમાં હતું ત્યારે સચિત હતી, પણ ઝાડમાંથી છૂટું પડીને લાકડું બની ગયું તો હવે એ અચિત બની ગઈ. એટલે એ હવે નિર્જીવ બની ગઈ. જયારે સચિત છે ત્યારે એમાં જીવ હતો, પણ હવે એ અચિત બની ગયું છે ત્યારે નિર્જીવ બની ગયું છે. બરાબર. એટલે અજીવ રૂપ પણ છે અને જીવ રૂપ પણ છે. આવો પહેલા કાયા છે, જીવનો સંબંધ થતા પહેલા કાયા હોય છે. પહેલા પણ કાયા છે, વર્તમાનમાં પણ કાયા છે અને પછી પણ કાયા છે. જીવ જન્મે એના પહેલા પણ કાયા છે, કારણ કે કાયા વગર તો એનું પોતે એના એક પણ પર્યાપ્તિનું બંધારણ નથી કરી શકતો. બરાબર. આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય અને શ્વાસોચ્છ્વાસ 4 પર્યાપ્તિ બાંધનાર જીવ 48 મિનિટ સુધી પર્યાપ્તિ ત્યારે જ બાંધે જ્યારે એનો આહાર લેશે. સૌથી પહેલો આહાર છે, સૌથી પહેલો એ આહાર લે છે, રાઈટ. તો એ આહાર કયો છે? પંચેન્દ્રિયને માના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવું હોય તો એ પંચેન્દ્રિયના રજ અને વીર્ય જેનો આહાર છે કે નહીં, તો એ કાયા જ છે ને. માતા પિતાના રજ વીર્ય પણ એની કાયા થઈ કે નહીં. એટલે ઉત્પત્તિ પહેલા માનું ગર્ભ પણ એની કાયા છે. કાયા વગર તે ઉત્પત્તિ જ નથી થવાની. ખાલી જીવ બહાર ઉત્પન્ન નથી થઈ શકતો. બોલો, આ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી છે એ ક્યારે ઓપનમાં જાહેરમાં થાય છે? એના માટે એને કાયા જોઈશે. એ કાયા એટલે શું? તો કે એ જે જેમાંથી એને પર્યાપ્તિ લઈને પોતાનું શરીર બનાવવાનું છે, બરાબર એવા જ શરીરને એની જરૂર પડવાની છે. એને એવા જ શરીરની જરૂર પડવાની ને. એટલે ગર્ભની અંદર જે જીવ ઉત્પન્ન થવાનો છે ને, એ ગર્ભ એ પણ એની કાયા જ છે, કારણ કે એમાંથી જ આહાર કરીને એના જેવી જ કાયા એ બનાવવાની છે. એટલે પહેલા પણ કાયા છે, જીવનો સંબંધ થતા પહેલા પણ એ કાયા છે. જીવ ના, કાર્મણ એ કાયા નથી, કારણ કે ભવાંતરમાં જીવ કાર્મણ શરીર સાથે ફરે છે, પણ એ ક્યાં કાયા છે? એને ફરીથી જન્મ તો લેવો જ પડે છે ને, કાયા તો એને ધારણ કરવી જ પડે છે ને. ના, કાર્મણ એટલે એ સૂક્ષ્મ, એ તો એવા 7 શરીર થઈ ગયા. આ ઔદારિક શરીરની વાત છે. આ કાય યોગ ના, એ કાર્બન નહીં, આ ઔદારિક કાય યોગ, વૈક્રિય કાય યોગ, કોઈ પણ કાય યોગની વાત છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, 3 કાય યોગ વાળાને શરીર વગર તો કાયા બનતી જ નથી. બરાબર. એને પણ જો આજે દેવગતિમાં પણ જે જન્મ લેશે તો દેવગતિની એની શૈયા ઉપર જ એની કાયા બનાવે છે. પર્યાપ્તિ તો એ માંડે છે ને. એ શૈયા વગર એ પોતાની ગમે ત્યાં રસ્તામાં હવામાં એ ઉત્પન્ન થશે નહીં થાય. એવી રીતે નારકીનો જીવ નારકીની કુંભીમાં જ જઈને જ ઉત્પન્ન થશે. એ પણ પેલા નારકીના માંસ લોહી પરુ પડ્યા હોય એમાં જ ઉત્પન્ન થશે ને. આહાર તો એનો જ કરશે ને. કોઈ પણ જીવને કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને 48 મિનિટ તો એને પોતાની 6 પર્યાપ્તિ બાંધતા થવાની. પંચેન્દ્રિયને 6 પર્યાપ્તિ, એકેન્દ્રિયને 4 પર્યાપ્તિ, 2 ઇન્દ્રિયને 5 પર્યાપ્તિ, વિકલેન્દ્રિયને 5 પર્યાપ્તિ અને પંચેન્દ્રિયને 6 પર્યાપ્તિ. એટલે એ તો એને સ્થાન વગર તો બનવાની નથી. તે સ્થાન જે સ્થાને જાય છે એ સ્થાન કોઈની કાયા છે ને. હા. હવે જે પોતે શ્વાસોચ્છ્વાસ નથી લઈ શકતો તે સમૂરજીવ બની જાય, કારણ કે એને કાયા મળતી નથી. જેને 3 જ પર્યાપ્તિ છે એને કાયા મળી જ નહીં ને. એ કાયા બનાવી નહીં શક્યો. એ પોતાની શ્વાસની પર્યાપ્તિ બનાવી નહીં શક્યો. એટલે 48 મિનિટમાં એનો જીવ નીકળી ગયો. બરાબર. પણ એને 48 મિનિટ સુધી આહાર તો કર્યો ને.
એને આહારે કર્યો, પોતાનું શરીરે બનાવ્યું, પણ એ કેવું થઈ ગયું? સમૂર્છિત થઈ ગયું, 48 મિનિટમાં ખતમ. તો આ કાયાની વાત છે. પહેલા પણ કાયા હોય છે, ઉત્પન્ન થયા પહેલા, જીવનો સંબંધ થયા પહેલા. કાયિક પૂતગલોને ગ્રહણ કરવાના સમયે પણ કાયા હોય છે, અને સમય વ્યતીત થઈ ગયા પછી પણ કાયા હોય છે. બરાબર? એટલે જે પર્યાપ્તિ 48 મિનિટ સુધી જીવ ગર્ભમાં આવીને લે એના પહેલા પણ કાયા, 48 મિનિટે લઈ રહ્યો છે એ સમયે પણ એ કાયા છે, અને સમય નીકળી ગયો, હવે પોતે પોતાની કાયા બનાવી રહ્યો છે. પ્રત્યેક સમયે પૂતગલ માના ગર્ભમાં રહી અને શોષીને હવે એનું 9 માસ સુધી પોતાની કાયા બનાવશે કે નહીં? એ હવે એની કાયા બનાવી રહ્યો છે. એટલે પછી પણ કાયા હોય છે, અને મૃત્યુ પછી પણ કાયા છે. આ તો જન્મેલા સમયની વાત છે. મૃત્યુ પછી પણ કાયા તો છે. આત્મા તો બહાર નીકળી ગયો, પણ હા, મૃત્યુ પછીની કાયા એ રીતે થઈ કે તમારું જ્યાં સુધી તમારા શરીર, જો જેમ કે પેલું દેડકાનું ક્લેવર કેવું હોય કે દેડકાને પેલું પ્રયોગશાળામાં કરે, એને મારી નાખે, ચીરે, બધું કરે, તો પણ પાછું થોડોક વખત રહીને અંદર પાછો દેડકો જીવિત થઈ જાય છે કે નહીં? દેડકો થાય છે. એટલે તો આ લોકો પ્રયોગ દેડકા ઉપર વધારે કરે છે. એટલે એ મર્યા પછીની પણ કાયા તો થઈ કે નહીં એની? કાયા તો એની જ છે. પાછો એને એમાં જીવ આવી ગયો કે નહીં? અરે પણ બધામાં તો બીજું બને ને, અંદર પેલા બીજા જીવોત્પત્તિ થાય કે નહીં એના શરીરમાં પણ? હા, બોડીમાં જીવ ઉત્પન્ન, બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થાય કે નહીં? કીડા, મરેલા પ્રાણીના શરીરમાં કે આપણા શરીરમાં અંદર કીડા ઉત્પન્ન થાય કે નહીં? થાય ને. તો કાયા તો છે જ નહીં, ત્યારે તો ઓલું બીજા કીડાએ આશ્રય લીધો. જ્યાં સુધી તમે એને અંતિમ સંસ્કાર નહીં કરો ત્યાં સુધી કાયા તો ખરી કે નહીં? તો જીવો દ્વારા ગ્રહણ કર્યા પહેલા પણ कायाનું भेदन, અને पूतगलों के ग्रहण करने के समय भी काया का भेदन, समय व्यतीत होने के बाद भी काया का भेदन, और काया का 8 प्रकार, 7 प्रकार जो पहले हो चुका है वही 7 प्रकार की काया, उसके अलावा नहीं. कौन से 7 प्रकार? तो औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण. तो ये 7 प्रकार की काया है. ये सातों प्रकार की काया भाषा और मन से अलग उसका स्वरूप है. भाषा और मन मात्र वर्तमान काल में, लेकिन काया त्रिकाल में है, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य काल में. आओ, तो काया आत्मा स्वरूप भी है और आत्मा अनात्म भी है. कभी कभी आत्मा स्वरूप, क्योंकि जब तक अंदर आत्मा है वो आत्म स्वरूप ही बन गई, और अनात्म स्वरूप इसलिए कि जब तक आत्मा का अंदर से आत्मा जब तक है तब तक, आत्मा निकलने के बाद तो आत्मा ही नहीं है अंदर, तो वो खाली का है, तो वो अनात्म स्वरूप हो गई ना. अच्छा, अब दूसरी खास आत्म स्वरूप कैसे, उसके लिए खास एक बहुत अच्छी बात बताइए, वो जानने जैसी है कि काया के स्पर्श करने से ही आत्मा को अनुभव होता है. अगर मुझे किसी एक बच्चे को मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उसको अनुभव लेना हो उसकी आत्मा को स्पर्शने का, तो मुझे उसको छूना ही पड़ेगा. मैं उसको नहीं छूंगी तो मैं उसकी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाऊँ. तो किसी भी व्यक्ति की काया को छूने से वो व्यक्ति की काया का आपको अनुभव होता है. बराबर? और काया से बंधे हुए कर्मों का अनुभव आत्मा को होता है. काया के कारण जो जो आप कर्म के बंधन करते हो, नए नए कर्म हम बांधते हैं काया के कारण, उसका अनुभव किसको होता है? आत्मा. मतलब आत्मा और काया बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई, क्षीर नीर की तरह, क्षीर नीर की तरह जुड़ी हुई है. आप जैसे दूध और पानी को ऐसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन अलग करने का तरीका भी तो है ना. है. कैसे करोगे? आप सारा पानी उसको उबालो 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 तो पानी जल जाएगा और मावा अपने आप छूट जाएगा. ये भी हो सकता है. हंस ने अगर उसमें चांच डाल दी तो वो भी सारा का सारा पानी पी जाएगा, दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा. ठीक है, तो ये सारा उसका अनुभव है. काया का विनाश होने से आत्मा का विनाश नहीं होता.
काया का विनाश हो जाए तो उससे आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। मतलब यहाँ ये खास करके उसके लिए है कि अगर आप किसी को मारना चाहो ना, तो उसके शरीर को मारने से उसके अंदर के जो मन था, उसके विचार थे, उसको आप नहीं मार सकते हो। आप उसको नहीं मार सकते हो। कोई अगर आपको किसी व्यक्ति पे गुस्सा है और आप उसका खून करना सोच रहे हो और आप उसका खून कर दोगे, तो इतना जरूर समझ लेना कि उस जिस व्यक्ति और उसके विचार पर आपको गुस्सा है और उसी के कारण आप उसका खून करना चाहते हो, उसकी काया को मारने से उसका खून होना ही नहीं है। बराबर? वो तो अपने विचार के साथ दूसरा जन्म लेगा, तो आपको तो मारने तब भी आने वाला है। आपको तो वो तब भी नहीं छोड़ेगा। एकाद अंग का छेदन होने से भी आत्मा का छेदन नहीं होता। अगर आपका एक अंग भी अ, छेदन हो गया तो आत्मा का छेदन होता नहीं है। तो अगर तो सीधी बात हो गई कि दोनों अलग ही है। बराबर? आप शरीर को मार दोगे तो आत्मा और उसके विचार को तो आप मार ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ काया को मार रहे हो। तो इसको तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब दोनों अलग ही है, तभी तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना। नहीं तो फर्क पड़ता। इसीलिए काया अनात्म स्वरूप है। बहुत क्लियर बात। इसलिए वो आत्म स्वरूप नहीं, अगर वो आत्म स्वरूप होती तो आप किसी को मारने से उसके खराब विचार को भी मार सकते थे ना। जरूर मार सकते थे, पर ऐसा नहीं। ठीक है। और कार्मण काया और संसारी आत्मा, देखो यहाँ खास चीज बताई है। कार्मण काया और संसारी आत्मा, क्योंकि आत्मा के ऊपर वो कार्मण काया कार्मण शरीर लगा हुआ है। वो भी लगा हुआ है, लगा हुआ है। जिस दिन आत्मा ने कुछ सोचा उसको निकालने के लिए, जिसने अपने मन को, जैसे हमने आगे वो मन के बारे में सोचा था, जिस दिन उसने अपने मन को मजबूत किया और उसके समुदाय को इकट्ठा करके कर्मों को घटाने का सोचा। देखो जैसे मन कर्मों को हटाने का सोचेगा तो ही हटेगा, नहीं तो कार्बन शरीर हटने वाला नहीं है। यहाँ आपको मन वचन का तीनों इसलिए बताया कि वचन है, भाषा वही वचन है। भाषा से आप बंधते हो, बोलने के कारण आप कर्म बांधते हो, सोचने के कारण भी आप कर्म बांधते हो। बराबर? पर अगर आपने ऐसा सोचा कि मुझे नई कर्म बंध चाहिए, कि नहीं मुझे ये संसार में रहना चाहिए, तो ऐसा सोचने पर ही आप अपनी आत्मा को कार्बन शरीर से मुक्त करा पाओ। अगर आपको अपनी आत्मा को कार्बन शरीर से मुक्त कराना हो, तो आपको जो आपको मन मिला है उससे सोचना ही बंद कर देना पड़ेगा। आपको मन का उपयोग बंद करना पड़ेगा, आपको बुद्धि का उपयोग बंद करना पड़ेगा, और आपको खास करके भाषा का उपयोग भी बंद करना। बराबर? क्योंकि ये तीनों अजीव है, और अजीव अजीव को पकड़ता है। उन्होंने किसको पकड़ा पकड़ा है? कार्बन शरीर को पकड़ा है। अजीव कभी जीव को नहीं लगेगा। अजीव अजीव जीव के ऊपर आकर चोटेगा नहीं। तो चोटाने वाला कौन है? आत्मा नहीं है, मन है। उसको उसके ऊपर ये चोटाने वाला, कर्म को बुलाने वाला और कर्म को इकट्ठा करने वाला मन है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल अलग ही है। आत्मा को ये सबसे कुछ लेना देना ही नहीं। मगर आत्मा को क्या है? मुक्त नहीं हो पाया, इसलिए जन्म मरण करना पड़ता है। करना पड़ता है इसलिए कभी भाषा मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बराबर? कभी एकेंद्रिय में गए तो भाषा नहीं मिली, कभी विकलेंद्रिय में आए तो भाषा मिली। भाषा मिली तो भाषा का उपयोग करने का मन किया, बुद्धि का उपयोग करने का मन किया ना। और खाने पीने का तो मन किसी का भी होगा। तो विकलेंद्रिय में भी एक जंतु दूसरे जंतु को खाएगा। अगर निगोद में होंगे तो एक निगोद का गोला से दूसरे निगोद के शरीर को आप डैमेज करते जाओगे। कर्मबंध तो कहीं से भी होने वाला है। कर्मबंध तो कहीं से भी होने वाला है। पर जब मन मिलेगा तब, अभी तक भी मन तुरंत क्यों नहीं होता है? अर्ध पुद्गल परावर्त काल, एक पुद्गल अनंत पुद्गल परावर्त काल घूमने के बाद ही क्यों मोक्ष होता है? ये सोचने की बात, ये सोचने की बात। क्योंकि आपको अनंत पुद्गल परावर्त काल तक तो समझ में ही नहीं आता है कि मन का क्या उपयोग करना है। हमको पता ही नहीं चलता है कि मन, हम तो यही सोचते हैं अच्छे काम करो अच्छा मिलेगा, अच्छे काम करो तो सब अच्छा मिलेगा। आप ये सोच सोच के भी अच्छा 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 करते रहते हो, क्योंकि वही तो सीखते रहते हो। ये पता ही नहीं कि सोचना ही बंद करोगे तो ही मुक्ति मिलेगी।
कर्म से मुक्ति तो ही मिलेगी कि सोचना बंद करो, बोलना बंद करो, मन योग बंद होना चाहिए, वचन योग बंद होना चाहिए, तो ही काय योग बंद होगा, ये पता ही नहीं है। बराबर। तो जो क्षीर नीर परस्पर बन के बैठा है वो है कार्मण काया और संसारी आत्मा, दोनों एक दूसरे से जमकर बैठा हुआ है। और इसीलिए कार्मण काया की अपेक्षा से आत्मा काय रूप हो गया, बराबर, काय आत्मा रूप हो गई, और औदारिक आदि शरीर की अपेक्षा से वो अनात्मा रूप हो गई, क्योंकि वो तो शरीर से भिन्न नहीं है, और कार्बन शरीर भी उसका ही लगा हुआ रहेगा ना। जो मोक्ष जा चुके हैं उनके तो कार्बन शरीर भी खत्म हो गया, उनके आत्मा के साथ तो कार्बन शरीर भी कहाँ जुड़ा हुआ है। तो जो 7 शरीर बताए, औदारिक औदारिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, तो ये और 7वां कार्बन का है, कार्बन शरीर, तो ये 7 शरीर तो आत्मा से छूटने ही वाला है। सिद्ध भगवंत जो भी बनोगे वो 8 को छोड़ के ही जाएगा, वो 7 शरीर को छोड़ के जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो ये कारण है कि काया रूपी भी है, अरूपी भी है, काया सचित भी है, अचित भी है, काया जीव भी है, अजीव भी, और काया पहले भी है और बाद में, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी काया है ना। कार्बन शरीर तो साथ में लेके घूम रहे हो, और कहीं ना कहीं तो कार्बन शरीर जब तक साथ में, आपको काया मिलने ही वाली, आपको जन्म लेना ही लेना है। और काया का भेदन तीनों काल में होगा, पहले भी होगा, मध्य में भी होगा और वर्तमान में भी होगा। तो इस प्रकार से मन वचन काया तीनों को जाना। अब यहाँ एक जो महत्व का मुद्दा ये आया, वो ये है कि कोई भी जन्म, आप जाति में जन्म लो, कोई भी गति में, 4 ही गति, चारों गति में अगर आप जन्म लो, जन्म तो कंपलसरी है लेना है। कार्बन काया जब तक लगी हुई है मोक्ष नहीं, बराबर। मन भी जब तक लगा हुआ है, जागृत है, मोक्ष नहीं। तो आपको मरण के प्रकार जानने हैं। यहाँ खास करके काया, काया है अनात्म स्वरूप, काया खत्म कैसे हो रही है उसके प्रकार बताए, उसको तो हम जरूर जानेंगे ही जानेंगे। तो मरण के कितने प्रकार? मरण के 5 प्रकार, आविची मरण, अवधि मरण, आत्यंतिक मरण, बाल मरण और पंडित मरण। तो ये 5 प्रकार के मरण जानने हैं हमको। आयुष्य पूर्ण होते ही आत्मा और आपका जो पुद्गल शरीर है, स्थूल शरीर है, वो अलग हो जाए, शरीर में से आयुष्य बल प्राण नाश हो जाए, शरीर में से जो आयुष्य है, जो बल है, जो प्राण है, उसका नाश हो जाए, और बंधे हुए आयुष्य कर्म के दलीकों का क्षय हो जाए, तभी आपका आयुष्य खत्म होगा। आपने जो आयुष्य के दलीक बांधे हैं, दलिये बांधे हैं, वो सब जब तक आपके अंदर पड़े हैं तब तक क्षय नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो पूरा दलिया क्षय हो गया, खत्म हो गया, एक एक करके आपके ऊपर से बिखर गया, तब आपके आयुष्य खत्म हो जाएगा। तो इसके 5 प्रकार है, उसमें सबसे पहला है आविची मरण। आविची मरण का मतलब है कि जिस तरह से प्रति समय तरंग उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते, उसी तरह प्रत्येक समय में आयुष्य कर्म के दलिक भी उदय होते हैं, नष्ट होते हैं, निर्जरित होते हैं, उदय होते हैं, निर्जरित हो जाते। प्रति समय आयुष्य दलिक, आप उसको जब उदय होगा आप उसको भोगोगे और फिर नष्ट हो जाएगा, तो मतलब वो खत्म हो गया, तो उतना आयुष्य घट गया ना। देखिए कैसे होता है, जीव जब भी पहले आयुष्य कर्म बांधता है, पर्याप्ति बांधता है, तब आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास जब वो बांधेगा ना, तब वो उसके दलिये को बांध कर छोड़ देता है। क्या करता है वो? जितने जितने उनको चाहिए ना, जैसे कि आप दिया सलाई के ऊपर जो लगा हुआ रहता है ना दारू, किसी भी दिया सलाई के ऊपर दारू लगा हुआ होता है, तो वो उसने क्या किया, पहले अपने जब पर्याप्ति ली ना, आत्मा ने जब पर्याप्ति धारण की ना, तब उसने मुझे इतना दारू घोड़ा चाहिए ऐसा करके उसने लिया और एक गट्ठा बना के छोड़ दिया। बात समझ में आई?
उसने वो गट्ठा गट्ठा बना के छोड़ दिया। वो उसने पर्याप्ति बांधी, अब क्या करेगा, रोज प्रति समय उसमें से एक एक छोटा सा टुकड़ा लेगा और उसको भोगेगा और वो निर्जरित करता जाएगा एक एक कणिए को। ठीक है, वो जो दारू बोला है ना, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेगा और उसको जलाता रहेगा जब तक वो पूरा जलेगा नहीं, तब तक उसकी सांस जाएगी नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसमें से छोटा सा कणिया लेगा, वो एक दिन में एक कणिया जलता है, ऐसा सोच के वो उतना ही उठाए। तो जब भी वो अंदर से वो दलिया एक ले और उसको भूगे, एक एक दलिया ले और भोगे, एक एक दलिया ले और भोगे, तो उसकी आयु चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बराबर? तो प्रत्येक समय इस प्रकार से आयुष्य कर्म के दलीकों का वो उसमें से लेता है, तो उसको बोला जाता है कि ये एक दलीक का उदय हुआ। क्या बोलता है? ये बोला जाएगा कि उसने आज एक दलीक का उदय किया और वो उसको भोगा, लेकर वो भोगेगा, भोगेगा तभी उसकी श्वास चलेगी, श्वास चलेगी। और श्वास चलते चलते जब वो निर्जरित, वो खत्म हो गया, तब निर्जरित हो गया, अब उसने दूसरा उठाया। ऐसे प्रति समय आयुष्य के दलीकों को वो एक एक उठाता जाएगा, उठाकर उसको भोगेगा और भोगकर उसको खत्म करेगा, तो निर्जरित होता जाएगा। तो स्टॉक खत्म होगा कि नहीं? धीरे धीरे एक एक दारू गोले का परमाणु लेता जाएगा, तो स्टॉक खत्म होता जाएगा। तो ऐसे समय समय पर आयुष्य घटता जाएगा। तो ऐसे मरण को आपके सारे दलीक अपने आप शांति से पूरे हो जाए और आपकी मृत्यु का समय आ जाए, तो उसको आविची मरण कहा जाता है। समझ में आया? ये ऐसे प्रकार का मरण है कि आपने अपने संपूर्ण आयुष्य को शांति से खत्म किया है, पूर्ण किया है। 63 साल का पुरुष, यानी कि तीर्थंकर परमात्मा, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, ये सबकी आयु ऐसे ही पूरी होती है, और चक्रवर्ती ऐसे ही आयु पूरी होती है। बराबर? जिस मरण में वीची, वीची यानी कि विच्छेद विद्यमान नहीं रहता है। बराबर? मतलब कि विच्छेद नहीं होता है, बीच में विच्छेद नहीं होता है। जिस मरण में आयुष्य मध्य में विच्छेद नहीं होता है, मतलब शांति से आप मरते हो और आयुष्य कर्म की परंपरा चालू रहती है, उसको आविची मरण कहते हैं। दूसरा है अवधि मरण। एक भव की अवधि, मतलब मुझे इतने वर्ष जीना है, उतनी अवधि मैं पूरी करूं। जितनी श्वासोच्छ्वास, जितने समय तक जीना है, वो समय, अवधि, अवधि का अर्थ समय होता है, उतने अवधि में पूरी करूं। देखो यहाँ अलग क्यों किया, कर्म के दलित को अलग किया है और अवधि को अलग किया। क्यों? क्योंकि जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कुछ ज्यादा ही दलिकों को खींच लेते। समझ में आया? आपकी सांसें धमन की तरह चलेगी। आईसीयू में पड़े पेशेंट जल्दी आयुष्य के दलीके को खींचेंगे, ज्यादा ही खींचेंगे। तो अवधि से पहले मरेंगे कि नहीं, बताओ? अगर एक्सीडेंट हो गया, आप रास्ते में तड़फड़ रहे हो, तो आप ज्यादा ही सांस ले रहे हो, तो आपने अपनी आयुष्य को अवधि से पहले समाप्त किया, ज्यादा निर्जरित कर लिया। तो ये ज्यादा निर्जरित होने के कारण आपकी अवधि पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही आपका मरण हो जाए। बराबर? तो अवधि पूर्ण होने पर मरण हो जाए, उसको अवधि मरण कहे। मतलब कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए और आप शांति से अपने समय तक सारा पूरा करो। जितने दली के लिए जितना समय बांधा है, दोनों चीज अलग है, दली अलग है, समय अलग है। तो यहाँ जो 63 साल का पुरुष है, उनके समय भी उतने एक ही हो गए, दलिये भी एक ही समय में खत्म होगा, उनको ये दोनों एक साथ खत्म होंगे, तो उसको अवधि मरण कहा जाता है। बराबर? जिसमें दलिये भी खत्म हो जाए और अवधि भी साथ में खत्म हो जाए। आयुष्य कर्म के दलिकों को भोगने के बाद उन द्रव्यों का पुनर्ग्रहण अवधि
मतलब वो पुनः ग्रहण ना हो तब तक जीव का अवधि मरण कहा गया। इस मरण के बाद उद्गत परिणामों की विचित्रता के कारण एक बार छोड़े हुए कर्म दलिकों का पुनः ग्रहण शक्य होता है। उसके बाद का मरण है आत्यंतिक मरण। ये उससे उल्टा मरण है। नरकादि आयुष्य कर्म रूप कर्म दलिकों को एक बार भोग कर मृत्यु के समय छोड़ देने के बाद जीव फिर से उसको कभी भी ग्रहण नहीं करे तो उसको आत्यंतिक मरण कहा जाता है। उसके बाद है बाल मरण। तो व्रत रहित मरना और व्रत सहित मरना ये भी दोनों अलग है। ये दोनों मरण अलग कहा गया है। व्रत सहित मरना वो है पंडित मरण, और व्रत रहित मरना वो है बाल मरण। ठीक है। तो अभी ये सबके भी अलग अलग प्रकार हम देखेंगे। आविची मरण का हम देखेंगे, द्रव्य आविची मरण। आविची मरण के यहाँ 5 प्रकार है। कितने? आविची मरण के 5 प्रकार। द्रव्य आविची मरण, क्षेत्र आविची मरण, काल आविची मरण, भव आविची मरण और भाव आविची मरण। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव से इसके 5 भेद पड़े। आविची मरण। अब द्रव्य आविची मरण के खुद के भी 4 भेद, चारों गति वाले भी। नारकी का द्रव्य आविची, तिर्यंच का द्रव्य आविची, मनुष्य का द्रव्य आविची और देव गति का द्रव्य आविची। नारकी का जीव, द्रव्य जीव मतलब उसका शरीर द्रव्यपणे वर्तते हुए नारकी के जीव ने जो द्रव्य नारकी आयुष्य ग्रहण किया, उसके जो दलिये उसने ग्रहण किए, उसको स्पर्शित किए और बंधन के रूप में बांधे और उसको पुष्ट किए, विशिष्ट रस से युक्त किए, स्थिति रूप में उसको स्थापित किए, जीव प्रदेशों के अंदर उसको प्रविष्ट किए और अभिनिविष्ट यानी कि अत्यंत गाढ़ रूपे उसको प्रविष्ट किया और उदय अभिमुख किया कि भी अब ये उदय में आएंगे, उदय में आएंगे, उदय में आएंगे। उस द्रव्यों को नारकी का जीव प्रति समय निरंतर आविची मरण से छोड़ता है। वो प्रति समय लेगा दलिए और छोड़ता जाएगा। इसीलिए गौतम, उस नारकी का जीव द्रव्य आविची मरण को द्रव्य नारकी द्रव्य आविची मरण कहा जाता है। ऐसे ही तिर्यंज भी, अगर आप तिर्यंज गति में भी ऐसे उसको बांधोगे और इसी प्रकार से उसको छोड़ोगे, अंत तक छोड़ोगे, आपको कोई बीच में कोई अपमृत्यु नहीं आएगी, तो वो तिर्यंश द्रव्य आविची, फिर मनुष्य द्रव्य आविची और देव द्रव्य आविची। ऐसे चारों प्रकार में आपकी आयु शांति से पूर्ण हो, उसको कहा जाता है आविची मरण। ठीक है। तो ये हुआ द्रव्य आविची मरण। अब आया क्षेत्र आविची, तो वो भी 4 प्रकार से, वो भी नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव क्षेत्र। तो नारकी का जो क्षेत्र आविची मरण है, वो नारकी का जीव जिस द्रव्य को स्वयं नारकी के आयुष्य के पणे में उसने जिसने ग्रहण किया है और उस द्रव्य को वो निरंतर प्रति समय छोड़ता रहता है, उसको द्रव्य आविची मरण समझना है। क्षेत्र आविची, जैसे वो द्रव्य आविची समझा, ऐसे ये नारकी के क्षेत्र के मुताबिक जाएगा। ऐसे ही काल यानी समय और भाव यानी आप कौन से लेशिया में ये पूरा कर रहे हो वो, बराबर। और इसी भव का, इस भव से अब अगले भव में आपको जाना हो तो यहाँ पूरा करोगे तो ही जा पाओगे, यहाँ आयुष्य पूरा नहीं किया होगा तो अगले भव में नहीं जा पाओगे। तो ये हुआ क्षेत्र आविची मरण। प्रत्येक नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव की अपेक्षा से भी 4 भेद हो गए आविची मरण के, तो कुल 20 भेद हो गए। नरक, देव, क्षेत्र, काल, भव, भाव
आवीची नर के नारकी के, तो नारकी के जीव का नरकायु क्षण क्षण में क्षीण होता है, वो एक साथ नहीं हो सकता, वो क्षण क्षण में ही होता है। तो नारकी का जीव द्रव्य विची मरण है, नरक क्षेत्र में रहे नारकी के जीव क्षण क्षण से जिस क्षेत्र संयोग से व्यतीत होते हैं, मतलब अब उनके जैसे जैसे आयु खत्म होगा, उनका नारकी के क्षेत्र में रहने का समय भी पूरा होता जाएगा कि नहीं? तो ये हुआ क्षेत्र आविची, आयु स्थिति भी खत्म होगी और क्षेत्र की स्थिति भी खत्म होगी। ऐसे ही दुख, अशांति और ऐसे भाव भी व्यतीत होते जाएंगे, तो भाव अविची मरण हुआ, बराबर। और नारकी का भाव खत्म होता जाएगा तो वो भाव अविची मरण। तो इस प्रकार से चारों गति की अपेक्षा द्रव्य आविची मरण के 20 भेद हुए। अब उसके बाद अवधि मरण की बात की। अवधि मरण के भी 5, द्रव्य अवधि, क्षेत्र अवधि, काल अवधि, भाव अवधि और भव अवधि। तो द्रव्य अवधि कैसे? वही नारकी द्रव्य अवधि, तिर्यंच द्रव्य अवधि, मनुष्य द्रव्य अवधि, देव द्रव्य अवधि। नारकी का जीव द्रव्य अवधि मरण को नैरयिक द्रव्यावधि मरण क्यों कहता है? जिस वर्तमान में नारकी का जीव उसे बांधे हुए आयुष्य के दलिये को छोड़ता है और पुनः वही जीव भविष्य काल में नारकी का जीव बनकर उसी द्रव्य को ग्रहण करके पुनः छोड़ेगा। तो गौतम, ऐसे नारकी के द्रव्यावधि मरण को नैरयिक द्रव्यावधि कहा जाता है। ऐसे ही तिर्यंच में होगा द्रव्य अवधि, ऐसे ही मनुष्य की द्रव्य अवधि और ऐसे ही देवों की द्रव्य अवधि होगी। इसी तरह क्षेत्र अवधि, भाव अवधि और भव अवधि भी समझ लेना है और काल अवधि भी समझ लेना है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव की अपेक्षा से 5 भेद और प्रत्येक की 4 गति की अपेक्षा से 4 भेद। नारकी का जीव आयुष्य के दलिकों को मर्यादित काल के लिए ही छोड़ता है, ठीक है। पुनः परिभ्रमण करते हुए उसको ग्रहण करना है और मर्यादित काल के लिए वो आयुष्य के दली जो छूटे हो चुके हैं उस छूटते जाते हैं, उसको नैरयिक द्रव्य अवधि के जैसे छूट गए और जितना बचे हो उतना ही समय बाकी है। तो इस प्रकार से हुआ आविची मरण के भेद। अब आया आत्यंतिक मरण और उसके भी 5 भेद। द्रव्य आत्यंतिक, क्षेत्र आत्यंतिक, काल आत्यंतिक, भव आत्यंतिक और भाव आत्यंतिक। द्रव्य आत्यंतिक का कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। नारकी के द्रव्य आत्यंतिक मरण और देव द्रव्य आत्यंतिक मरण, ये दोनों को समझाया। सबके 4 प्रकार, द्रव्य आत्यंतिक, क्षेत्र आत्यंतिक, काल आत्यंतिक, भाव आत्यंतिक और भव आत्यंतिक। नरक में नारकीपणे रहे हुआ जीव जो द्रव्य को वर्तमान समय में छोड़ता है, वो नारकी का जीव उस द्रव्य को भविष्य काल में फिर से कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता और छोड़ भी नहीं सकता। एक गौतम, नारकी द्रव्य आत्यंतिक मरण और देव आत्यंतिक मरण को, नारकी द्रव्य आत्यंतिक, देव आत्यंतिक को देव द्रव्य आत्यंतिक, तिर्यंच आत्यंतिक को तिर्यंच योनि आत्यंतिक मरण कहा जाता है। आओ
अवधि मरण में कितने समय तक छोड़े हुए आयुष्य के कर्म के दलीकों को फिर से ग्रहण करना होता है, और आत्यंतिक मरण में एक बार छोड़े हुए आयुष्य कर्म के दलीकों को फिर से ग्रहण नहीं करना होता है। देखिए, आत्यंतिक मरण ऐसा मरण है कि आप समय से पहले मर जाते हो। अवधि मरण ऐसा है कि आपको समय तक जिंदा रहना ही है। तो जीव क्या करता है, अगर उसने कहीं अकस्मात वर्ष और उसमें उसने सारे दलिए को ज्यादा यूज कर लिए, तो अब दलिए खाली हो चुके, तो वो जो छोड़ा हुआ था उसको पुनः भोगेगा, उसको वापस खींचेगा। जो उसने, मान लो कि उसने 80 साल तक द्रव्य छोड़े, उसको वापस लेगा और बाकी के 20 साल तक वही वापस छोड़े हुए द्रव्य को वापर के 20 साल निकाल देगा। तो ऐसे मरण को आत्यंतिक मरण कहा जाता है। उसमें छोड़े हुए कर्म को वापस भी ग्रहण कर सकते हैं और कुछ समय तक जिंदा ज्यादा रह सकते। उसके बाद है बाल मरण। बाल मरण के 12 प्रकार हैं। बाल मरण का अर्थ है कि समय से पहले, समझ से पहले मृत्यु आ जाए, उसको बाल मरण कहा जाता है। बिना समझदारी की मृत्यु, मनुष्य जन्म मिला लेकिन फेल जाए तो वो हुआ बाल मरण, तब उसका मरण हो जाए तो वो बाल मरण। इसके 12 भेद है। पहला है वलय मरण, फिर वशार्थ मरण, अंतशल्य मरण, तद्भव मरण, गिरिपतन मरण, तरुपतन मरण, जल प्रवेश मरण, अग्नि प्रवेश मरण, विषभ भक्षण मरण, शस्त्राघात मरण, विहानस मरण और घृद्य पृष्ठ मरण। ये 12 बार प्रकार के जो भेद हैं वो है बाल मरण के। क्योंकि ये जीव सम्यक दर्शनी नहीं है, बराबर समझदार से नहीं मर रहा है, पंडित होकर नहीं मर रहा है। आओ, पंडित कर होकर मरे तो उसके दो प्रकार है, पादपोगमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। पादपोगमन यानी ऐसा मरण कि जिसमें, अब दोनों में अनशन लिया जाता है, लेकिन पादप गमन मरण के अंदर आप बिल्कुल हिल तक नहीं सकते, पड़खा भी नहीं घूम सकते हो। और ये जो दूसरा था भक्त प्रत्याख्यान, उसमें आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, खाली पानी की छूट भी रख सकते हो, और घूम भी सकते हो, चल फिर भी सकते हो। तो जो दोनों में भेद है, उसमें पादपोगमन की बात की, उसके दो प्रकार है, निहारिम और अनिहारिम। अब भक्त प्रत्याख्यान मरण की बात की है, बाल मरण नहीं, अब भक्त प्रत्याख्यान। जो पंडित मरण का ही दूसरा भेद है भक्त प्रत्याख्यान, बराबर। इसके भी दो भेद है, निर्हारिम और अनिहारिम। दोनों प्रकार में भक्त प्रत्याख्यान मरण अवश्य सप्रतिकर्म संस्कार सहित है। तुरंत पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो भगवान? तब प्रभु कहते हैं, जब तक शरीर आत्म गुणों की वृद्धि में सहायक होता है, जब तक मेरा शरीर मेरे आत्म गुणों की वृद्धि में सहायक होता है, तब तक साधक उस शरीर को सहन करता है। जब ये शरीर कार्यक्षम नहीं रहता है, तब वो साधक स्वेच्छा से शरीर का त्याग करता है। मतलब ये हुआ कि अगर एक साधक आत्मा है, तो वो अगर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो उसके कारण अपने आप वो ये नहीं करेगा कि मैं मेरे शरीर की सेवा शुश्रूषा और ये सब बंद कर दूं, ऐसा नहीं करेगा। समझ में आया? उनका शरीर साथ दे रहा है, वो उसको पता है कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो अब मैं विराट नहीं ज्यादा करूंगा, आराधना मेरे से हो नहीं पाएगी।
और जब आराधना नहीं हो पाएगी और विराधना ही ज्यादा होगी, तब वो क्या करता है? तो तब वो ऐसे समय में स्वेच्छा से शरीर का त्याग करना चाहता है, और शरीर का त्याग करने में या तो पादपोगमन अनशन चलेगा या भक्त प्रत्याख्यान चलेगा। तो इसीलिए वो इस प्रकार से अपने को मरण को स्वीकार करता है। इसलिए यहाँ पंडित मरण के भी ज्यादा भेद बताए हैं। पादपोगमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, निर्हारिम, अनिर्हारिम, ऐसे 4 प्रकार के उसके भी भेद बताए गए। तो जब तक आत्म गुणों की वृद्धि में शरीर सहायक हो, तब तक साधक उस शरीर को वहन करता है, उससे पुण्य कर्म बांधता है, उससे मोक्ष की साधना करता है, और शक्ति का उससे संचय भी अच्छे से हो सकता है। लेकिन जब शरीर साथ ना दे, तब साधक स्वेच्छा से शरीर त्याग करता है, उसको पंडित मरण कहा जाता है। पंडित मरण में और समाधि मरण में कोई प्रकार का ज्यादा आवेश नहीं होता, लेकिन पूर्ण शांति और स्वस्थता की जरूरत यहाँ होती ही है। पादपोगमन मरण, चारों प्रकार के आहार का जीवन पर्यंत त्याग करके पाप पादप यानी कि वृक्ष की नीचे गिरी हुई शाखा, उसी तरह संपूर्ण रूप से निश्चेत रहना। जब वृक्ष में से एक डाली टूट के गिर जाए तो वो बिल्कुल निश्चेत हो जाती। तो ऐसे सर्व प्रकार की यौगिक चेष्टाओं से रहित बनना और मृत्यु पर्यंत आत्मभाव में लीन होना, उसी को समाधि कहा गया है और समाधि मरण भी कहा गया है। इसीलिए पादपोगमन और समाधि मरण एक जैसा है। उसमें शरीर संस्कार, सेवा शुश्रूषा आदि कोई भी भाव रूप प्रतिकर्म नहीं होता, यह अप्रतिकर्म ही होता है। उसके बाद है भक्त प्रत्याख्यान मृत्यु। जीवन पर्यंत 3 अथवा चारों आहार का त्याग करके आत्मभाव में रहना, इसलिए उसको सधर्म से कहा जाता है। पंडित मरण में इंगित मरण का उल्लेख जरूर है, परंतु उसका समावेश भी भक्त प्रत्याख्यान में हो जाता है। जिसमें शरीर का निहरण यानी कि शरीर की अग्नि संस्कार आदि उत्तर क्रिया करने में आए, तो उसको निहारिम कहते हैं। उत्तर क्रिया करने का समय आए उसको। साधक जिस स्थान में मृत्यु को प्राप्त हो, उस स्थान से अन्यत्र अलग जाकर उसके मृत विधि की अंतिम विधि की जाती है, उसको निहारिम कहा गया है। जैसे जैसे शरीर का निहरण करने आए, वैसे वैसे साधक जिस स्थान में जंगल आदि में मृत्यु प्राप्त हुआ हो, वहीं पे उनका मृतदेह छोड़ दिया जाए, और मृतदेह की कोई अंतिम विधि करने में ना आए, उसको देव अनिहारिम कहा गया है। ठीक है, उसमें मृतदेह की कोई अंतिम विधि करने आती नहीं है। पादपोगमन और भक्त प्रत्याख्यान दोनों प्रकार के मरण का राजीव वर्दी बहुत पक्षाविदा है। बराबर। तो पादपोगमन और भक्त प्रत्याख्यान दोनों प्रकार के मरण को निहारिम और अनिहारिम, ऐसे 2 भेद बताए गए। आपका 13वां उद्देश्य 7वां शतक पूरा हुआ। अब 13वां उद्देश्य 8वां शतक कर्म प्रकृति के बारे में है। 8 मुख्य कर्म प्रकृति है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो 8 मुख्य कर्म प्रकृति बताई गई है। साधु की विविध प्रकार की वैक्रिय शक्ति होती है। साधु के अंदर विविध विविध प्रकार की वैक्रिय शक्तियां होती है। तब संयम की आराधना करने वाले साधु अनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती है। गौतम स्वामी थे अनंत लब्धि निदान।
वैकेरियल अवधि से साधु अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूप बनाकर उसके द्वारा अपना कार्य कर सकता है। बराबर। अणगार पशु पक्षी के रूप बनाकर, कोई भी साधु या अणगार पशु पक्षी के रूप बनाकर आकाश में गमन कर सकते हैं। सोना चांदी आदि धातुओं की पेटी की विक्रिया करते हुए वो हाथ में लेकर भी, पेटी को हाथ में लेकर भी गमन कर सकते हैं। घट पट कट आदि कोई भी रूप बनाकर वो वहां रह सकते हैं और ये उसका सामर्थ्य भावी है। ये सारा माई अणगार करता है, परंतु अमाई अणगार कोई भी लब्धि का प्रयोग करता नहीं। कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो वितरागी है, उसको नहीं चाहिए संसार। बराबर। तो इस तरह वो आहारक बनता है। लब्धि प्रयोग की आलोचना आदि द्वारा शुद्धि ना करे तो वो साधक विराधक है। मतलब अगर आप साधना करते करते कभी कभी विराधना भी कर लेते हो, हाँ, वो तो बाहरगाम है भैया, उसका फोन उसके पास है, नहीं आएगा, ओटीपी पॉसिबल नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, तो क्या करे बोलो।